Good morning. So I've just started walking this morning. It's 14 past 6. Well, I can see the logo on my shirt at the moment. Let's talk about this. This is the first time I'm wearing Think and Grow 10x shirt. I'm very, very happy to see how the logo has come out. I'm not sure if you're able to see this straight in the camera. But you'll definitely see it in different other media. This and the other variations that we're trying out. Well, today, if we started off with the logo, perhaps we can talk about the story behind the logo and the story behind why we started the podcast. Maz has asked me to hold this camera in a different angle so that we can put the video on YouTube. I'm finding it hard actually. I'm just trying to learn, by the way. So going back to the logo, there are two stories. Well, one is behind why Think and Grow 10x, the name, and why we started off the podcast itself. Which one do you want to hear first? I'll mix it up. Okay, so let me just try and hold the camera this way. So just about a year ago, I think it was July 2024, मैंने कभी पॉडकास्ट पे कभी फोकस ही नहीं किया था, कभी सुना ही नहीं था किसी का पॉडकास्ट. It was just by chance that I happened to see a short video, a reel from another creator who introduced Diary of a CEO podcast in that reel, and a couple of other methods to, essentially work on one's development. I opened the podcast Diary of a CEO, and I got intrigued. उसमें मुझे ये लगा कि the way Stephen actually came across, if you go back to his earliest podcasts, the very first podcast, for example, he did, those were audios. I could see a reflection of myself as well, the honesty, the kind of stories, the kind of, let's say, discussions that he was having. I could relate to those discussions. And I always wanted to share similar stories with people. My background is such that I've evolved as an individual over the years. बहुत सारी stages आई हैं लाइफ में, बहुत सारी changes भी आई हैं, बहुत ज़्यादा लर्न किया, तो काफ़ी चीज़ें थी जो मैं खुद भी शेयर करना चाहता था. तो मैंने ये सोचा कि भाई साहब, let's do this. Let's start a podcast. So, and we can learn from other people. We can bring in guests who can talk about their stories. We can talk about different topics. तो उस वक्त फिर ये हुआ कि हमने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दी विद इन अ मंथ. कैन यू बिलीव कि जिस दिन आइडिया जहन में आया उसके एक महीने के अंदर अंदर हमने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया. और नाम रखने का सोचा तो क्योंकि हम हेल्प करते हैं फाउंडर्स की टू सेट अप बिजनेसेस इन द यूएई. देयर आर many clients that we've helped so far who set up their businesses and succeeded. तो हमने सोचा कि let's do this. It's easy kill. We can call it Diary of a Founder. तो भाई साहब, ये हो गई कॉपी एक तरह से डायरी ऑफ अ सीईओ की, शेमलेस कॉपी. इंटेंशन ये नहीं थी कि कॉपी करें उसको, लेकिन हो गई क्योंकि हम फाउंडर्स की हेल्प करते थे और हैं. तो हमने कहा कि एक तरह से फाउंडर्स की डायरीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि क्या वो करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज, challenges, experiences they actually go through. The agenda was to actually have a chat with those founders on the podcast, and hence we found it relatable to have the name Diary of a CEO.
तो हमने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, स्टार्ट कर दिया तो गेस्ट को इनवाइट करना शुरू कर दिया, डिफरेंट फाउंडर्स, यू नो, डिफरेंट एक्सपर्ट्स एज वेल अलॉन्ग विद दैट। तो करते कराते वो रीच द पॉइंट, आई थिंक इट वाज एपिसोड 14 और 15 अराउंड दैट, कि हमें लगा कि भाई हमारी कोई यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, बिकॉज पीपल स्टार्टेड लिंकिंग अस टू द डायरी ऑफ अ CEO somehow, and it started becoming evident that, you know, we were being inspired too heavily by that podcast, and we did not have our own identity. तो उस स्टेज पे जाके फिर हमने सोचा कि भाई अपनी आइडेंटिटी पे अब फोकस करना चाहिए। फोकस करने के लिए वी हैड टू थिंक हार्ड एंड, यू नो, डू अ लिटिल बिट ऑफ soul searching. And as part of soul searching, we had to ask many questions of ourselves, हमारे अपने खुद से। तो उन क्वेश्चंस में अपने आप को डिस्कवर करना बड़ा ज़रूरी था कि हम वही चीज़ लेके आए सामने जो हमारी रिफ्लेक्शन हो, जिसको हम अपनी आइडेंटिटी ढंके की चोट पे कह सकें। तो हमने बहुत सारे अपने आप से सवाल करने शुरू किए कि भाई क्यों सारा कुछ, क्या बैकग्राउंड है हमारा, हमारे क्रेडेंशियल्स हैं क्या, हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस, हमारा विजन क्या है, नाम में क्या रखा है। तो उस एक्सरसाइज में वी वेंट बैकवर्ड्स, कनेक्टिंग द डॉट्स, एज आई ऑलवेज से। We looked at our past. I looked at my past. I looked at the entire journey that we had covered as a team at InZone. I looked at my own evolution over the last 20 years, and actually much उससे भी पहले तक की। तो बहुत चीज़ों पे हमने थॉट प्रोसेस डेवलप किया। तो उसमें क्योंकि हमारा असल में बिज़नेस है लीगल सर्विसेज एंड बिज़नेस सेटअप, वेयर वी हेल्प फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड आल्सो प्रोवाइड लीगल सर्विसेज टू पीपल। तो उसमें ये नज़र आने लगा कि वी कवर्ड अ जर्नी आवरसेल्व्स ओवर द ईयर्स। एक तो जर्नी ये थी कि मैंने एज एन इंडिविजुअल I transformed from a lawyer to an entrepreneur, which was completely unlikely. होता ये था कि जब मैंने लॉ किया, पाकिस्तान में प्रैक्टिस की, फिर यहाँ आ गया दुबई, तो आई वर्क विद अ लॉ फर्म। तो वहाँ पे एक स्ट्रेंज सिचुएशन थी मेरे साथ। आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट एज अ स्पीकर एंड एज समवन हु कुड स्पीक इन मीटिंग्स, और समवन, यू नो, मुझे बिजनेस सेंस नहीं था। आई डिड नॉट हैव एनी बिजनेस सेंस। माज एंड तामिर, आई एम फाइंडिंग इट हार्ड टू होल्ड द कैमरा टुडे। डायरेक्शन आपने चेंज किया, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया आज। तो एक स्टैंप लग गई मेरे ऊपर कि तारिक इज़ टेक्निकली वेरी साउंड एज अ लॉयर, बट since he doesn't have any business sense, it's very unlikely that he will become a partner in a law firm. तो मेरे जहन में भी वही नक्श हो गया। अब वो जहन में नक्श हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि लॉ फर्म इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड, परहैप्स आई कैन लुक एट सम अदर अपॉर्चुनिटीज़। की वजह से फिर मैं इन हाउस चला गया। तो करते कराते, यू नो, आई स्टार्ट बिलीविंग कि भाई देयर इज़ नो फ्यूचर other than just, you know, working as a lawyer, you know, focus on the technical law, and that would be it. अब उसके बाद I reached a point जहाँ पे I got really fed up with things, with the status quo. I decided to explore myself. तो जब अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की, तो मैनी सेल्फ हेल्प बुक्स दैट आई स्टार्टेड रीडिंग वन आफ्टर द अदर। रीडिंग मुश्किल होती थी तो मैंने ऑडियो बुक्स
सुननी शुरू कर दी। सुबह शाम गाड़ी में कुछ भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ऑडियो बुक सुन रहा हूँ। तो आई रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे मुझे लगा कि आई डू हैव अ बिजनेस सेंस समहाउ समहाउ थोड़ा सा बिजनेस सेंस है, इसको यूज़ किया जा सकता है। आइडिया केम फ्रॉम अ बुक। तो उस वक्त हमने कहा कि जी हम विल स्टार्ट अ लॉ फर्म ऑनलाइन। लीगल इंस वहीं से स्टार्ट हो गई। तो ये एवोल्यूशन थी फ्रॉम बीइंग अ टेक्निकल लॉयर टू एन एंटरप्रेन्योर। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड 10 years, we have a very strong team, mashallah. We are one of the top corporate services providers and the leading law firm for estate planning in the UAE. तो इन जोन भी आ गया बीच पे, कॉर्पोरेट सर्विसेज प्रोवाइडर का बिज़नेस स्टार्ट किया हमने। तो ये एवोल्यूशन जो हमने कवर की, उसमें 5 साल जो थे ना, अबाउट 5 to 6 years, वी हैड टू ग्राइंड एक्सट्रीमली हार्ड। यहाँ तक कि we didn't have an office space, we couldn't afford to pay salaries। ऑफशोर टीम रखी हुई थी, यहाँ पे 1-2 लोग थे हमारे साथ, तो उनकी सैलरीज़ देना बड़ी मुश्किल होती थी हमारे लिए। लेकिन अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हम बस चलते रहे। वो रीच द पॉइंट कि जहाँ पे हमने अपना ऑफिस खरीद लिया, जैसे मैंने दूसरी वीडियोस में जिक्र किया उसका। तो उसमें फिर ग्रो करना शुरू किया हमने। तो मेरे जो गुरु हैं उनके नाम मैं सेपरेट वीडियोस में सेपरेट बनाऊंगा सारी, कौन कौन किन किन लोगों ने मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है और जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ता रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई सस्टेनेबल बिज़नेस बनाना है या बिज़नेस स्टार्ट करना है और ग्रो करना है, हमेशा लुक एट द ग्रोथ एलिमेंट व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉरवर्ड। लुक एट द ग्रोथ एलिमेंट दैट हैज़ टू बी द वे फॉरवर्ड। उसके अलावा बिज़नेस में कोई चारा नहीं होता है, या तो आप श्रिंक कर रहे होते हैं या ग्रो कर रहे होते हैं। एट नो पॉइंट इन टाइम यू आर स्टैग्नेंट। ये लाइफ पे भी अप्लाई होता है कि आप एक जगह खड़े नहीं रह सकते, आप ग्रो कर रहे हैं या श्रिंक कर रहे हैं, आप जवान हो रहे हैं या बूढ़े हो रहे हैं तो 5 लोगों की टीम के साथ हमने एंटर किया हमारे बर्लिंगटन टावर में, ऑफिस छोटा सा लिया हमने। तो उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता, लकी थे हम, अच्छे टीम मेंबर्स मिल गए, बहुत लोगों ने मेहनत की सब ने। तो मिल मिला के अब वो नियरली 150 पीपल। तो ये स्टोरी हमारी अपनी एक ग्रोथ की है और हमने इसको मल्टीफोल्ड तरीके से यानी अचीव किया विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी एंड एवरीवन्स हार्ड वर्क, आई मस्ट एक्नॉलेज। तो अब पॉडकास्ट की बारी आती है। डायरी ऑफ CEO, डायरी ऑफ अ फाउंडर, इन्फ्लुएंस हो गया, हमने नाम रख लिया। हमारी अपनी आइडेंटिटी की बारी आती है ढूंढने की। तो वो आइडेंटिटी यही निकली कि भाई ग्रोथ की स्टोरी है सारी, जो हमारी अपनी स्टोरी है, एवोल्यूशन की स्टोरी है। इट्स अ स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग अ लॉयर टू एन एंटरप्रेन्योर। इट्स अ स्टोरी ऑफ डिस्कवरी of ourselves. It's a story of change. It's a story of thought process, development of thought process. तो उसमें फिर हमने करते कराते नाम, एक दिन मैं स्विमिंग पूल में स्विम कर रहा था तो नाम जहन में आ गया कि थिंक एंड ग्रो। 10x के ऊपर हम बात कर रहे थे। 10x क्योंकि 10x ग्रो किया है हमने, 10 times ग्रो किया है और मल्टीपल टाइम्स किया है। और 10x ये भी लोग समझते हैं कि ये न्यूमेरिक गेम है, ऐसा नहीं है। इट्स द गेम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, it's the game of discovery from being one person to another. It's the name of change as well. तो आप एक इंसान से दूसरे इंसान के रूप में आ जाएं किसी तरह से, तो आपकी एक चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी 10x कहलाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि नंबर्स की गेम हो। तो हमने यही अचीव किया थ्रू आउट, तो इसलिए हमने इसका थिंक एंड ग्रो 10x। और ये इट्स अ कॉल टू एक्शन एज वेल बाय द वे फॉर एवरीवन। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ तो चाह रहा होता है, जाने या अनजाने में, कि उसने ग्रो करना है।
उसकी ग्रोथ की ट्रजेक्ट्री, थॉट प्रोसेस हर इंसान का डिफरेंट है। हर इंसान सोचता भी है, मुझे ये बताएं कौन नहीं सोचता। तो हमारा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि इफ़ यू आर थिंकिंग एनी वे, इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन थिंकिंग, व्हाई नॉट थिंक एंड ग्रो 10x। अगर आप इस तरह की ग्रोथ मॉडल पे या इस तरह की थॉट प्रोसेस डेवलप कर लें तो आपके लिए चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। थिंग्स डू स्टार्ट हैपनिंग एंड लॉट ऑफ पीपल आर अंडर अ मिस्टेकन बिलीफ कि 10x ग्रोथ इज़ वेरी 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 हार्ड। और मैंने अब ये प्रूव करना है आप सबको कि इट्स एक्चुअली ईजियर देन ग्रोइंग 1 टाइम और 2 टाइम्स। मसला ये होता है कि ट्रक आ गया फिर यार आज। मसला ये होता है कि हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, हम लोग अपनी यूनिक एबिलिटी को नहीं ढूंढ पाते हैं, हम लोग वक्त ज़ाया करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों में। एंड वी डोंट हैव द राइट गाइडेंस, वी डोंट हैव वी लैक इन मैनी मैनी एरियाज। A lot of people actually sleepwalk through life। जो उनको दिया जाता है वो बस आंख बंद करके आगे चलते रहते हैं। ख्वाहिश उनकी भी होती है ग्रो करने की, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। ख्वाहिश उनकी भी होती है ग्रो करने की, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। तो हमारा मुद्दा ही ये है, हमारी ख्वाहिश ये है कि अगर हमने ये किया है अपने साथ, अगर हमने ग्रोथ अचीव की है और हम करेंगे भी मज़ीद इंशाअल्लाह with the help of people and the Almighty, तो why not take everyone with us in this journey। तो एक जर्नी है वो हम तय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमने नाम चेंज किया फ्रॉम डायरी ऑफ अ फाउंडर टू थिंक एंड ग्रो 10x। और ये स्टोरी है नाम की, और यही है स्टोरी पॉडकास्ट की। पॉडकास्ट स्टार्ट की थी हमने टू एजुकेट पीपल, और ये एजुकेशन का मुद्दा जो है वो बिल्कुल आगे लेके चलेंगे। हम अपनी थोड़ा सा हम फाइन ट्यून कर रहे हैं चीज़ों को। मुझे मेरी ड्यूटी लगाई गई है कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं ताकि मुझे कैमरा पे आके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिले। पहले भी था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो था, इस वजह से ही मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट कर ली। उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था, बहुत घबराता था, दिल कांपता था कई मरतबा फ्रैंकली। लेकिन अब मेरी ज़िम्मेदारी ये लगाई गई है कि भाई बात करो कैमरा में, रोज़ बात करो। मैंने कहा ठीक है बात करते हैं, तो चीज़ें शेयर करते हैं। चीज़ें शेयर करेंगे तो दिल में से जो चीज़ें निकलेंगी, हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए, ना भी हो फ़ायदा, दिल में से बात निकाल के अपना ही थोड़ा सा दिल हल्का हो जाएगा। तो ये है सारा आइडिया मेरी इन वीडियोस का। ये वीडियोस बनती रहेंगी इंशाल्लाह, and there will be a lot of positivity, there will be a lot of thought process development, there will be a lot of growth that we will be covering in these videos, not only for ourselves, for everyone around us। और ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। ऑन दैट नोट, मुझे मैंडेट दिया गया था कि 15 मिनट की वीडियो बनानी है, तो ये 18 मिनट हो गए। गोइंग फॉरवर्ड आई विल नॉट केयर कि हाउ लॉन्ग द वीडियो इज़, आई विल जस्ट मेक अ वीडियो on whatever I'm thinking on that very morning। तो आप लोगों से शेयर करूँगा। Until that time, take care of yourself।